ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಸ್ಲಿಂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನು ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ವಕ್ಫ್ ಉಳಿಸಿ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸಿ ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮುದಾಯದವರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಹಳೆ ಭಾಗದ ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಸಾಗಿದ ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಗವಾನ್ ಚೌಕ್ ಮೂಲಕ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಸಾಗಿತು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ತಿರಂಗ ಧ್ವಜಗಳು, ಎತ್ತ ನೋಡಿದರತ್ತ ತಿರಂಗ ಧ್ವಜ ಹಾಗೂ ನೀಲಿ ಧ್ವಜಗಳು ರಾರಾಜಿಸಿದವು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಹಮ್ ದಸ್ತೂರ್ ಬಚಾನೆ ಆಯೇ ಹೈ ಆವ್ ಹಮಾರೆ ಸಾಥ್ ದೋ ಎಂದು, ಹಮ್ ಕಾನೂನ್ ಬಚಾನೆ ಆಯೇ ಹೈ ಆವ್ ಹಮಾರೆ ಸಾಥ್ ದೋ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು ವಕ್ಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಹಜ್ ಸಚಿವ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತುಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಪುಟಿದೇಳುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಜಾಬ್, ಆಹಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನಾವು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ವಕ್ಫ್ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದರು. ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ದಾಳಿಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾದವರಿಗೆ ಆತ್ಮಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮೌನಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಸ್ಲಿಂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನು ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಮೌಲಾನಾ ಅಬು ತಾಲಿಬ್ ರೆಹಮಾನಿ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಸ್ಲಿಂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನು ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಜಂಟಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ವಿದ್ವಾಂಸ ಮಿಜಾಹಿದುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಸೆಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ನ ಫಾದರ್ ಕ್ಲಾರಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಬಂತೆ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ್, ಜ್ಞಾನಿ ದರ್ಬಾರ್ ಸಿಂಗ್, ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಾರುತಿ ಬೌದೆ, ಬಾಬುರಾವ್ ಪಾಸ್ವಾನ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವಣ್, ಸಿಪಿಐ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಬಾಬುರಾವ್ ಹುನ್ನಾ, ಆರ್ಪಿಐನ ಮಹೇಶ್ ಗೋನಾಳ್ಕರ್, ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಹಾಶ್ಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. मैं समझता हूं पूरी दुनिया में यह सिस्टम नहीं होगा. आखिर वक्फ क्या है? वक्फ इनको किस लिए चुप रहा है? वक्फ एक गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, महिला के लिए ये दान दिए. ये लोगों को, वक्फ बोर्ड को, जो भी लोग, जो भी मुस्लिम भाई हमारे वक्फ बोर्ड के लिए ये जमीन होने, प्रॉपर्टी होने, जो भी हो, किस लिए दिए? ताकि गरीब बच्चों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, गरीब लेडीज के लिए, गरीब बिजनेसमैन के लिए जो मुश्किल में है उनको मदद हो, इससे के थ्रू मदद होना बोलते. ये काम किसका है? सरकार का. सरकार नौजवानों को मदद करना, नौकरी देना. आज पूरा नौजवान देश में परेशान, पढ़ के डिग्री लेके बेकार बैठा हुआ है. वो नौजवानों की फिक्र नहीं है उसको. गरीब लोग परेशान है, किसान परेशान है. किसान अपना बिल लो बोल के 10 साल से, जब से सेंट्रल गवर्नमेंट, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, 10 साल से लड़ रहे किसान. कितने जनों के जान चले गई, कितने जने दिल्ली में आप देखें टीवी मीडिया में, उनका बिल लो बोल के 10 साल से लड़ रहे किसान लोग, उनका बिल नहीं लाई. ये बिल से, वक्फ बोर्ड से इनको कंसर्न ही नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को. ना किसी गवर्नमेंट का है, ना किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी दी है. ये लोग हमारे भाई अपनी जायदाद में से ये गिफ्ट किए ताकि लोगों को मदद मिले. ये तो सरकार का काम था सबसे पहले.
बाबा साहब के संविधान में क्लियर कट है, ये सब कुछ सरकार करना है बल्कि, लेकिन ये बहुत बड़ी बदमाशी हुई, बहुत बड़ी जानबूझ के अक्सर है। ये तो बहुत छोटे मोटे लोग हैं, आप 14 साल का इतिहास उठा के देखिए, ये कौम 14 साल से एक दिग्गज को ठुकरा दी है, एक से एक दिग्गज जितने लोग दबाते हैं, जितना ये लोग जितना दबाना चाहते हैं कम्युनिटी को, उतना ये कम्युनिटी उभरेगी। कितना देखने को उनको मालूम होता है कि 2-4 को दबाए, 2-4 को प्रॉब्लम करे, थोड़े लोगों को प्रॉब्लम करे, इतिहास है। आज पूरे वर्ल्ड में इतिहास है, कितना दबाओगे उतना ऊपर आएगी कौम। तो मैं खासकर मैं चैलेंज करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि मुसलमानों को तकलीफ देने की कोशिश मत करो। बहुत कुछ हो गया, कभी हिजाब के बारे में, कभी खाने को लेके, कभी एजुकेशन को लेके, इस तरह से जो उनकी कोशिश हो रही है, ये कोशिश 14 साल से हम देख लेते आए, और कभी भी अपने हक के लिए, अपने कलमे के लिए हम इंशाल्लाह कभी किसी से डरेंगे नहीं, डालेंगे इंशाल्लाह। और हमारी कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में भी अपोज की है, रोड पे भी अपोज की है, कर्नाटक में भी अपोज की है, और हमेशा हम ये बिल को अपोज करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या था? गरीब कितने परेशान है, नौजवान कितने परेशान है, महिला कितने परेशान है, किसान कितने परेशान है, वो लोगों को किस तरह से बिल लाए, वो लोगों को किस तरह से नौजवानों को मदद करे। बिल तो वो आना चाहिए था कि शराब नहीं बिकना हिंदुस्तान में, बिल तो वो आना था तंबाकू, गुटखे, सिगरेट, उसका बिल आना था। पूरे देश में कम से कम 30% लोग शराब से, तंबाकू से, सिगरेट से, गुटखे से जान गंवा रहे, उसकी फिक्र नहीं है। हर चीज का परमिशन देना, बिल तो लाना वो था, सेंट्रल गवर्नमेंट को किस तरह से बचाने का बिल लाना था। आपको मैं यहाँ का एग्जांपल देता हूँ, कर्नाटक में सेंट्रल गवर्नमेंट 10 साल 11 साल हो गए आके, एक तो हॉस्पिटल बनाई, एक तो कॉलेज बनाई, आप पूरे कर्नाटक का, एक तो रेलवे स्टेशन बनाई, एक तो एयरपोर्ट बनाई, कुछ नहीं। जो चीज बने हुआ है उसको छूने मारने का को उनको पास टाइम नहीं। मैं पूरा स्टेट तो छोड़, क्योंकि पहले मैं बिदर की बात करना चाहता हूँ। बिदर में हॉस्पिटल कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाए, बिदर में मेडिकल कॉलेज, बिदर में इंजीनियरिंग कॉलेज, जितने चीज दिख रहे हैं, रोड ले लो, ट्रेन ले लो, लाइट ले लो। आज हिंदुस्तान का नाम, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो 100 से पीछे था, आज 6-7वें नंबर पे, पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर 6 नंबर पे वो किसने बनाया? ये बाबा साहब की देन है, बाबा साहब का संविधान है। तो इसके लिए मैं, ये सरकार भटकाना चाह रही है, तो मैं आप लोग पूरे देश में सभी समाज के लोग, अभी बनते जी बात किए, अभी पास्टर जी बात करने वाले, और हमारे सरदार जी भी है, इस तरह से सभी समाज के लोग, ये स्टेज पे सभी समाज के लोग, जिस वक्त बिल को इनका कंसर्न नहीं है, उल्टा ये कम्युनिटी को मदद करना था, और उनका बयान क्या है? सबका साथ सबका विकास। अच्छे दिन आएंगे, यही दिन हमको पुराने दिन तो होना भाई, हमको तो पुराने दिन अच्छे लग रहे। सबका साथ सबका विकास, किसका विकास हो रहा है देख रहे, 250 चीज छीनने की कोशिश कर रहे हैं, 250 चीज छीन रहे हैं, बोलने का एक, करने का एक। तो
तो मेरे भाइयों, क्योंकि मेन हमारे गेस्ट आए, उन्होंने बात करना है, मैं तो आप में हमेशा रहता हूँ जी। जब तक जीऊंगा ईमानदारी से और हक के लिए, हमेशा मेरी जान भी परवाह नहीं। उसकी मजम्मत करते हुए स्टेज पर बैठे हुए तमाम डिग्नेटरीज से और आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट की उन तमाम के लिए हम खामोशी मनाएं। प्लीज़ स्टैंड अप एंड मौन। ड्रोन कैमरे में देख रहा हूँ कि अवाम यहाँ से शाहगंज तक अभी भी जो है ना मौजूद है। कुछ लोग वापस भी हो रहे हैं। मैं उन तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जहाँ हैं वहीं पर खड़े रहें और अपना एहतजाज दर्ज कराएं। यकीनन ये हज़ारों की तादाद में आपका यहाँ पर आना इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ एक चैलेंज है हुकूमत के लिए कि वो पुरजोर तौर पर इस बात को कबूल करे कि उसको ये वक्फ एक्ट वापस लेना पड़ेगा। अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जनाब बंते जी, दयानंद सागर जी से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए और मुख्तसर से अंदाज में दिल की गहराइयों से यहाँ पर इस इस्तिजाजी रैली में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। साथ ही साथ इस अजीम शान रैली को मुखातिब करने के लिए मुल्क के मायानाज उलमाए किराम मुकर्ररीन आए हैं। उनमें मौलाना मोहतरम अबू तालिब रहमानी साहब, रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मैं तहे दिल से आप सब की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ। साथ ही साथ हमारे हैदराबाद से तशरीफ़ लाए एक मारूफ मुकर्रिर डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब एडवोकेट, जो वक्फ एक्ट के सिलसिले में बड़ी अहम बातें आप लोगों के सामने रखेंगे। मैं भी उनका बहुत ही आखिरी लम्हात में उनसे हम गुजारिश किए तो माशाल्लाह वो हमारे गुजारिश पर यहाँ पर आए हैं। उनका भी मैं दिल की गहराइयों से आप सब की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ। हमारे एक्शन कमेटी के तमाम जिम्मेदारों की तरफ से शहर दीगर के क्रिश्चियन हजरात, बुद्धी हजरात और दीगर समाज के सारे मेहमानों का, एक्शन कमेटी के तमाम जिम्मेदारों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का इस्तकबाल करूँगा। एक एक का नाम लेते बैठूँ तो वक्त लग जाएगा। आप इसको नजर, एक वक्फ कानून के खिलाफ और दूसरा पहलगाम के सानिया के खिलाफ मजम्मती बयान। मैं पहले वक्फ कानून के खिलाफ जो मेमोरेंडम देने जा रहे हैं मैं उसे पढ़ लूँगा। टू श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन, न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट अपील अगेंस्ट द वक्फ अमेंडमेंट्स थ्रेटनिंग सेक्युलरिज्म, minority rights and religious freedom. Respected Mayor, the preamble of the Constitution of India solemnly declares the nation to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic committed to ensuring justice, equality and liberty to all citizens. The term secular enshrined in the preamble is a defining principle guaranteeing freedom of religion and equal respect for all faiths. Articles 25 to 28 of the Constitution affirm the right of individuals to freely profess, practice and propagate their religion, while also safeguarding the rights of religious minorities to manage their religious affairs independently. It is in this constitutional spirit that